Good morning, children. In this video we shall talk about simple past tense. Simple present tense we have done earlier. I hope you guys have watched that video and you have understood everything. Now today we are going to start this simple past tense. See, only simple present tense and simple past tense is there in your syllabus, so we will deal with these two tense only for this class. See, the simple past tense is used to indicate things that happened or existed before now, or that has happened in past. Okay, it emphasizes that the action is finished. Means the simple you remember that in present tense I told you that present tense refers an action that happens now. Okay, but in past present tense, past indefinite tense or simple past tense, what happened? All the actions that has been finished before some time, or that the action, if that action is completely finished, then that tense will comes under simple past tense, right? We use the simple past tense to refer to action that happened in the past, right, and are finished or completed, you can say. Like, see here, the example is I washed my car. What does this sentence mean? This sentence shows that I have finished washing my car, right? I am not washing the car right now. Okay, सिंपल पास्ट टेंस क्या करता है? जैसे प्रेजेंट टेंस आपको अभी जो काम आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बारे में बताता है, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस क्या करता है? सिंपल पास्ट टेंस आपको जो काम आपने कर लिया, खा लिया, पी लिया, ठीक है, खेल लिया, उसके बारे में बताता है। मतलब वो काम आप कर चुके हैं, वो काम अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही आप पहले कर रहे थे, ठीक है, वो काम खत्म हो चुका है, वो काम अब नहीं होगा, या बाद में आप कभी खेल चुके हैं, ठीक है, तो बाद में आप खेलेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो खेल चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। जैसे शी एट एन एप्पल, तो शी वो क्या की है? एप्पल को खा चुकी है। ऐसा नहीं एप्पल अब बचा हुआ है, अभी वो खा रही है, ठीक है, अभी वो खा नहीं रही है, एप्पल खत्म हो गया, एप्पल को खा चुकी है, ठीक है। तो जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। नाउ it comes under the verb form. In simple past tense, second form of verb is used as main verb, right? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने क्या देखा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब, ओके, बट इन सिंपल पास्ट टेंस second form of verb is used as main verb. That's why I have sent you the list of verbs and their forms, right? You will check the second form of verbs in that list. Those verbs will be used as in simple past tense, right? And for in Hindi, if you want to recognize the sentence, what you have to look for, you will see that you will get ta, te, thi in that sentence, right? करता था, करती थी, ठीक है। अगर आपको हिंदी में इसको सेंटेंस को पहचानना है, सिंपल पास्ट टेंस को, तो आप देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में आपको ता, ते, ती मिलता है, ठीक है। मतलब कि जैसे राम आम खाता था, सीता गाना गाती थी, करती थी, ठीक है, वो रहता है। और इसका जो रूल है इंग्लिश में, वो है सब्जेक्ट पहले नाम प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें रहती हैं, ओके। लाइक you have to understand is very nicely. Remember always that simple past tense only refers to events that completely finished in the past, right? That occasion or that event should be completely finished in the past. If a sentence refers to an event that continues into the present, it does not use the simple past tense.
Understood? If that action is continuing now also, if that action continues, so that sentence will not come under simple past tense. You have to remember it. Like, for example, if I say I have been cleaning my house for 2 hours, so I am cleaning my house right now also. Okay, so this sentence will not come under simple past tense. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको बस याद ये रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कि काम खत्म हो चुका है, मतलब वो जो काम हो रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका। जैसे अगर कोई खेल रहा था तो खेलना पूरा खत्म हो चुका, वो खेल चुका। खाना था तो खा चुका, खत्म हो गया खाना। ठीक है, अब अभी वो काम नहीं किया जा रहा है, वो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है। क्लियर? याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस हिंदी में आपको ताते थी करती थी, करता था, जाता था, आता था, इस तरह से दिखेगा। इंग्लिश में पहचानना हो तो सब्जेक्ट दिखेगा नाम, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखेगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो सेंटेंस में रेस्ट ऑफ द पार्ट रहते हैं, वो दिखेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में जो भी एक्शन होगा, जो भी काम होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तभी वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है, मतलब वो काम अब नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गया। ठीक, क्लियर? नाउ फॉर एक्सरसाइजेज व्हाट यू विल डू, सी you have to tick the correct verb that is used in these sentences, like Arun jumped or jumps up very high। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है इसमें सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब सुटेबल हैं, जो सूट करेंगे, उस वर्ब को टिक करना है। आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए किसमें आपको सेकेंड फॉर्म कहाँ दिखता है। जैसे फर्स्ट वन इज अरुण जम्प्ड अप वेरी हाई, तो ये जम्प्स एस लगा हुआ है, ये तो नहीं होगा। जंप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जम्प्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, जो सही आंसर है उसको टिक कर देंगे। रोहिणी क्राइड लास्ट नाइट, रोहिणी क्या की, कल रात रोई थी। ठीक है, तो क्राई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, क्राइड, राइट, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर राजू ड्रैंक वाटर, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ याद रखना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद रहेगा तो आप सिंपल पास्ट टेंस इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, राजू ड्रैंक वाटर, राजू पानी पी लिया, तो पानी, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ड्रैंक, है ना। तो यहाँ आपको ड्रैंक है, और ऐसे अगर नहीं पहचान पा रहे तो ये देखिए ड्रिंक में एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है तो ये तो पास्ट होगा नहीं, तो ये ही होगा पास्ट, है ना। ग्रैंडमदर बेक अ केक फॉर अस, यहाँ बेक्स होगा, ठीक है, एस होगा, एस इज मिसिंग, एस आप लिख लेंगे। तो ग्रैंडमदर बेक्ड और बेक्स, अब एस लगा हुआ है तो ये तो पास्ट में आएगा नहीं, तो बेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बेक्ड, so we'll tick this word. Understood? This way only you will complete these two sentences also. You have to tick the correct verb that can be used in simple past tense. Okay, in case of any doubt you can send me message or you can contact with me. I'll be there in the group.